Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In today's newspaper session, we will be discussing the important topics and articles from the newspaper of 21st August 2024. E-gaming FDI rules set to be eased. So foreign direct investment, we are talking about improving its scope within India. तो इसमें e-gaming sector में भी we can increase its scope. मेजरली टू मेक इंडिया ग्लोबल गेमिंग हब, जिसमें कि हम लोकल टैलेंट का भी यूज कर सकते हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट से और इवन 100% फॉरेन ओनरशिप को अलाउ करके भी वी कैन इनहेंस दिस. Further, when we talk about the gaming sector, so there are two types of games that are game of chance or game of skill. Game of chance are like gambling, etc. Game of skill is like poker, etc. जिसमें कि a person needs practice, whereas game of chance are mainly luck based. तो when we talk about gaming, तो gaming के लिए Public Gambling Act is important, 1867, and even Information Technology Act 2000. These are the two major acts that become important with regard to gaming. Also, there is Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which also seeks to distinguish between game of skill and game of chance, specifically for the purpose of FDI. Next, Sustainable Finance for Viksit Bharat. तो यहाँ पे when we talk about Viksit Bharat or the developed nation, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेनली कैसे गवर्नमेंट स्ट्रैटेजाइज कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है टू फाइनेंस इंटायर पावर सेक्टर वैल्यू चेन और बाय कैपिटलाइजिंग द न्यू एरियाज बाय द गवर्नमेंट. जैसे कि स्पेसिफिकली किन एरियाज में अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, दैट इज इंश्योरिंग द minimum current use while keeping in mind the needs of the future generation. जो हम की टर्म यूज करते हैं विच इज इंटरजेनरेशनल जस्टिस, उसकी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं. And here the areas they mainly include the pumped and battery energy storage. जैसे battery energy में we talk about the lithium, कैसे हम उसको स्टोर कर रहे हैं बैटरीज को इन कोल्ड टेम्परेचर एक्सेट्रा. प्लस ईवीज, फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं उसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग एंड ऑल्सो द कॉस्ट फॉर इट्स सेटिंग अप. फिर स्मार्ट मीटरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय यूजिंग environmentally sustainable methods, specifically by electrolysis of water or green ammonia, etc. These are the major ways here जिससे कि हम sustainable transition को take place करने में हेल्प कर सकते हैं. Next, CCI poser for Reliance Disney. So here the Competition Commission of India has raised queries on the proposed merger of media assets of Reliance Industries and Walt Disney in India. So here this is regarding the Competition Commission of India, its roles. और यहाँ पे it is about their merger कि कैसे जो combined entity है to have a near monopoly power over digital and TV cricket rights. जैसे कि we also talk about Google recently, जिसके लिए कि specific digital bill भी आया which is proposed in 2024 itself. तो similarly monopoly को avoid करने के लिए here there is the role of Competition Commission of India which becomes important. Further, there is this term here that is AAEC or Appreciable Adverse Effect on Competition. Next, women-led farmer collectives at the forefront of millet drive. So again here, this is the concept regarding the importance of millet. कैसे हम जो monoculture है of wheat and rice, especially in the two northern states of Haryana and Punjab, इनमें भी कैसे हम इसको कर्ब कर सकते हैं मोनोकल्चर को, and we can have a shift in the cropping pattern towards millets.
and other pulses, growing them, जिससे कि जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उस पे ज्यादा फोकस आएगा। इम्पोर्टेंट अगर हम स्कीम की बात करते हैं तो जैसे मिड डे मील स्कीम हो गई, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फर्दर एक जो मोनोटोनस चैलेंज क्रिएट होता है विद रिगार्ड टू अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवरवेट के जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनके टुवर्ड जो शिफ्ट देखा जा रहा है, या फिर जस्ट रिलाइंग ऑन मीट एंड राइस एज द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन जैसी कंडीशंस देखी जा रही हैं जिसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम है। एंड प्लस ओवरवेट का इशू देखा जा रहा है, लाइक ओबेसिटी एटसेट्रा। तो इसके उसको चैलेंज को कर्ब करने के लिए हियर दिस इज अ स्टेप जहाँ पर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इवन दे आर टेकिंग इनिशिएटिव जिसमें कि जो सीड बैंक्स हैं विच इज लाइक अ पार्ट ऑफ एक्स C2 कन्वर्जेशन, तो कंजर्वेशन, तो इसमें भी इवन द सीड्स आर प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज। फर्दर स्टेट की बात करते हैं तो हिम उन्नति प्रोग्राम स्पेसिफिकली वाज स्टार्टेड हियर। यहाँ पे एसएचजीज का रोल दिखाया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच न्यूट्रिशनल सीरियल्स और न्यूट्री सीरियल्स जिनको प्रोक्योर करते हैं एंड इवन टर्न करते हैं इनटू फ्लोर एंड रावा। तो ओडिशा मिलेट्स मिशन की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं, श्री अन्ना। और अगर हम ड्राई लैंड की बात करते हैं तो मिलेट्स आर ग्रोन इन ड्राई लैंड। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, कुटकी, ककुन, चीना, दीज आर ऑल द मेजर एग्जाम्पल्स। और इवन जो स्पेसिफिक हम इनका कैटेगराइजेशन या फिर इनका इंक्लूजन देख सकते हैं एमएसपी में भी, जिससे कि ज्यादा फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा एंड दे विल फोकस ऑन द मिलेट्स कल्टीवेशन। जैसे कि अगर हम स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं इन मध्य प्रदेश, तो वहां पर भी देर इज अ the millets they will be brought under the minimum support price regime. Next, government aims to transform fair price shops into nutri hubs. Again, we are talking about the focus over the nutritional part. जैसे कि अगर हम NFHS सर्वे में भी देखते हैं तो उसमें भी 2019, 2021 among these years जो NFHS 5 था उसमें there has been an observation कि जो children है below the age of 5 उनमें 35% देखा गया न्यूट्रिशनल वेस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो। फर्दर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जब हम बात करते हैं तो हियर दिस इज लिंकिंग ऑफ द फेयर प्राइस शॉप्स टू द न्यूट्रिशनल सेक्टर। जैसे कि डेटा की बात करें तो करेंटली देर आर 5 लाख शॉप्स ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स जो डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन एन एवरेज 60 to 70 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स एनुअली under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. So this was mainly started in 2020 during the COVID period, जब extreme hunger के cases देखे गए थे, जहाँ पे again 800 million beneficiaries को nearly free of cost खाना मिलता है, food grains. Further, when we talk about the bank, important bank, तो SIDBI की हम बात कर सकते हैं to provide loans and invoice financing support to these revamped shops because even they need a certain amount of profit to work, जैसे कि Small Industries Development Bank of India. Further, we can talk about their integration with the fast-moving consumer goods category, जहाँ पर when the stocks are settled, they can also be shared with these industries etc. for their better production and selling. न्यूट्रिशन के ऊपर और फोकस करें तो इवन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इवन दे कैन बी इंक्लूडेड अपार्ट फ्रॉम द पल्सेस मिलेट्स एक्सेट्रा। जन पोषण केंद्र की हम बात करते हैं और न्यूट्रिशन हब्स, तो फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी on Tuesday launched a pilot for transformation of 60 fair price shops in Gujarat, Rajasthan, Telangana and Uttar Pradesh into Jan Poshan Kendras or nutritional hubs. So this becomes important. Further, उड़ान स्कीम का यहाँ पे contribution आ जाता है कि terrains में in tough terrains etc. it can provide a low cost transport of such products.
डिजिटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ई पॉस विच इज इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और ज्यादा एफिशिएंट है। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जिसमें कि ऑथेंटिकेशन होएगा बायोमेट्रिक, जिससे कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं टारगेटेड, उन्हीं को ही द बेनिफिट्स दे विल बी रिसीव। नेक्स्ट, फेड रेट कट बस वीक डॉलर ड्राइव गोल्ड टू फ्रेश रिकॉर्ड हाई। So here this is just the major trend regarding the gold prices as they hit a record high on Tuesday. As a weak dollar and buying by vesting investors, it extended the precious metals rally. Mansi, if you could explain the relation between these gold prices and कैसे currency linked है इससे? US Fed interest rate cuts. Karunadi, would you like to add something in this? इसमें हम डायरेक्टली यही कह सकते हैं कि जब डॉलर का जो प्राइस है वो कम हो रहा है तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली जो गोल्ड है उसका कंजम्पशन लोगों के पास इंक्रीज ही होगा, उसकी डिमांड इंक्रीज ही होगी। Next, what are the allegations against Siddaramaiah? So here this is regarding the Muda scam in Karnataka. So Muda की full form है Mysore Urban Development Authority. So here this is kind of a land scam that is being visible here. जैसे कि जो Muda है, this authority is accused of illegally acquiring land from farmers at low prices और फिर further उसको sell कर रहे हैं to private developers at higher rates. So again, case of corruption, favoritism that is seen here. Next, reorienting fair price shops for nutrition security. Again, this is the third article similarly on the same lines of nutritional empowerment. So इसमें again we are interlinking PDS, public distribution system. तो एक सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जो होता है फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का इन द एफपीएस, तो वो थ्रेटन करते हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को ऑफ दिस एसेंशियल लास्ट माइल डिलीवरी नेटवर्क। इसके लिए और ज्यादा एनहांसमेंट चाहिए, लिंकेजेस विद एफएमसीजीज एटसेट्रा, और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट स्टेप जिसमें कि एक्सपेंशन हो रहा है ऑफ द कस्टमर बेस ऑफ एफपीएस। ट्रैकिंग हो सकती है, जो फूड स्टॉक सेव हो रहा है उसको कैसे हम और यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे मिलेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द इथेनॉल ब्लेंडिंग। फिर पॉइंट ऑफ स्केल have already discussed about it कि devices they have already been installed in the fair price shops and nearly 100% of transactions are now biometrically authenticated through the Aadhaar. Further NFHS 5 की बात करते हैं तो ये अभी हमने बात करी थी वेस्टिंग एंड स्टंटिंग की, तो इट इवन रिवील्स हाई अनीमिया रेट्स। तो न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं एंड स्पेसिफिकली द फॉर women and children. So 67.1% in children aged from 6 to 59 months, which is very high. और 57% देखा गया है in women aged 15 to 49 years. 25% is in men in the same age group. Underweight की condition, stunting, wasting, etc. Jan Poshan Kendras in 60 fair price shops. जिसे वो ऑलरेडी डिस्कस्ड, और सिडबी की हमने बात कर ली है टू क्रिएट एफपीएस सहाय। तो दिस इज अगेन अ मोबाइल एप्लीकेशन जो एफपीएस डीलर्स को अलाउ करता है टू फाइनेंस इनवॉइसेस फॉर परचेजिंग नॉन पीडीएस कमोडिटीज। अब 3.4 की पिलर्स की अगर हम बात करते हैं कि जो ये जन पोषण केंद्रास हैं इनके क्या मेन 4 कॉर्नरस्टोन्स है, तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एफपीएस डीलर्स, और फिर असेसिंग टू वर्किंग कैपिटल
for FPS dealers through invoice financing, market linkages via business to business aggregators, a promotion of nutritional literacy, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करना, एक हाई कंज्यूमर बेस को और ज्यादा अवेयर करना, क्रिएट करना, एंड फर्दर लिंकेजिंग विद द बिजनेस मॉडल्स. Next, India planning to set up over 50 e-commerce export hubs. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बोला जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का. अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो मेजर एग्जांपल्स जैसे कि मिंत्रा, नाइका, these are all the major examples of e-commerce. फर्दर सिटी की अगर बात करते हैं तो बेंगलुरु is kind of a major hub with regard to e-commerce. Specifically, e-commerce means कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो ऑनलाइन ऐप के थ्रू जो ऑर्डर हो रहा है, होम बेस्ड डिलीवरीज हो रही हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स, डोर स्टेप डिलीवरीज. और गुरुग्राम हरियाणा, मुंबई महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु, दीज आर ऑल द मेजर सेंटर्स. करंट स्टेटस की अगर बात करते हैं तो अभी जो इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट है, इट इज वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली $64 बिलियन 2020 में, और ये $200 बिलियन तक रीच कर जाएगा बाय 2026. डिजिटल पेनिट्रेशन में अगेन रोल ऑफ यूपीआई की हम बात करते हैं, और इंक्रीजिंग इंटरनेट और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन. फर्दर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एट वन प्लेस इटसेल्फ, कि कैसे जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है प्लग एंड प्ले मॉडल को क्रिएट करना, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है रॉ मटेरियल्स का, वहां से कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कितनी इजीली लॉजिस्टिक्स, फर्दर उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका प्रोसेसिंग, एंड देन transporting of the final product. All these become important. और FDI को और ज्यादा इंक्रीज करना. एक्सपेंशन के रूल्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020, these are specifically for e-commerce. और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसका भी यहाँ पे रोल आ जाता है. प्लस गिग इकोनॉमी की हम बात कर सकते हैं. एंड जो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज होती हैं उनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा ई कॉमर्स सेक्टर का. तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सपेंशन है इट विल बी बियॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन इंडस्ट्री ओनली. जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसकी ग्रोथ के साथ साथ इंटरनेट पेनिट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो भी राइज हो रहा है. एंड हम बोल सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का यूज है उसको यूज करके हम कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको भी पर्सनलाइज करते जा रहे हैं विद टाइम. एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ 50 ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स हम बोल सकते हैं कि लॉजिस्टिक पार्टनरशिप्स इंक्रीज होंगी. इसके साथ साथ जो सप्लाई चेन इनोवेशन है उसको हम इंक्रीज कर पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. एंड साथ साथ में हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं उनके लिए एक चैलेंज उठेगा. उनका जो स्टोर्स हैं उसमें बोल सकते हैं कि डिसरप्शन हो सकता है इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज. तो उनका इंटीग्रेशन भी होना जरूरी है विद द ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स. इसके अलावा हम देख सकते हैं जब ई कॉमर्स की बात करते हैं तो फैशन के उसमें या फिर जो वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग या फिर उसकी तरह इंडिया हब बनता जा रहा है. तो उसको किस तरह से जेनजी फैशन या फिर उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है जो आने वाले टाइम में 5 मिलियन से ज्यादा की मार्केट बन जाएगी. Next is second dam collapses at Teesta Power Project in less than a year. So here NHPC's Teesta V Dam, which is National Hydroelectric Power Corporation का डैम है Teesta V Dam, it collapses amid monsoon fury. तो अगर हम डैम सेफ्टी की बात करते हैं तो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, कि कैसे जो डैम का क्रिएशन है it must be
followed with proper maintenance, regular maintenance. और ज्यादा जो ओल्ड डैम्स है उनके ऊपर अगेन फिर रिकंस्ट्रक्शन की हम बात कर सकते हैं। वर्ल्ड अगर इनिशिएटिव की बात करते हैं तो देयर इज आल्सो वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स। फर्दर वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द dam rehabilitation and improvement project, which is DRIP, specifically to prevent the damages of created by the dams. यहाँ पे there is this dam collapse, it was mainly due to monsoon fury. तो पहले ही कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि क्या क्या रिस्क हैं एसोसिएटेड विद देम। फर्दर सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम लेचिन वैली, दिस नेम कैन बी इम्पोर्टेंट। और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड में भी हमने अभी रिसेंटली देखा डैम का कैसे कनेक्शन था। फिर फर्दर क्लाउड बर्स्ट अभी जो करंटली हुआ है इन सिक्किम। तो हम बोल सकते हैं कि जो मॉनसून सीजन है उसमें सिक्किम एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं मेजरली 4 महीने के अंदर ही 75% ऑफ द रेनफॉल रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट या फिर फ्लैश फ्लड्स क्लाइमेट चेंज के साथ साथ और भी ज्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम मेक श्योर कर सकते हैं कि ऐसे वल्नरेबल एरियाज में हम स्मॉल स्केल पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएं rather than making them on the large scale, ताकि जो डैमेज है वो भी उतने बड़े स्केल पे ना हो। एंड तीस्ता रिवर की जब बात करते हैं तो इट इज ओरिजिनेटिंग इन सिक्किम फ्रॉम टीएसओ लाहमो लेक एंड इंडिया में सिर्फ वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के अंदर फ्लो करती है एंड उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है। डैम्स में उनकी सिक्योरिटी चेक देखी जा सकती है। उसके अलावा देखा जाता है जो डैम के अंदर मिट्टी जमा हो जाती है वो नहीं हटाई जाती, जिसकी वजह से उनकी पानी भरने की क्षमता और जो उनके स्थित रहने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो उसको सही किया जा सकता है। वो पूरे इंडिया में जितने भी डैम है सभी के लिए देखने के लिए मिलता है। पिछले 50 साल में अगर किसी डैम की जो सफाई नहीं हुई है, जो उसके अंदर गाद जमती है उसको नहीं हटाया गया, तो उसके पानी को स्टोर करने की क्षमता और उसके खड़े रहने की क्षमता 25 से 50% तक कम हो जाती है। तो उसको उस डायरेक्शन में काम किया जा सकता है कि किस तरह से उसको साफ किया जाए, क्योंकि मानसून सीजन में जो रेन वाटर को स्टोर करने के लिए डैम या फिर जो छोटे तालाब या नदी होते हैं वो एक रिसोर्स होते हैं कि किस तरह से रेन वाटर को स्टोर किया जा रहा है आगे के लिए। तो उन चीजों के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। थैंक यू जी फॉर एडिंग। The East has a major role in India becoming developed. So here this article is mainly regarding the eastern states कि कैसे वो help कर सकते हैं इंडिया को in becoming developed. Again majorly because वहाँ पे बहुत ज्यादा scope है of development. तो balanced और high growth in the region is a must to catch up and contribute to India's overall growth journey. अगेन बिकॉज एक तो कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है जिसमें वी हैव दैट चिकन नेक जो हम बोलते हैं विच इज जस्ट ऑफ 25 किलोमीटर की जिसकी विड्थ है। तो उसके लिए हम उड़ान स्कीम का यूज कर सकते हैं अगेन टू इनहांस कनेक्टिविटी। फर्दर बांग्लादेश के थ्रू भी वी कैन क्रिएट पाथवेज टू इंटरैक्ट। और vast mineral wealth, a strategic locational advantages with the east. Again, because they also border the neighboring countries. Plus, जब हम बात करते हैं border villages की, तो उनके enhancement के लिए for the protection and security, that part becomes important. फिर lower social progress rankings हैं for the eastern states. ये अगेन हाईलाइट करते हैं कि और क्या नीड है सोशल प्रोग्रेस को इनहांस करने। जैसे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ने बताया, इट रिवील्स दैट नो स्टेट फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन इज अमंग द हाई टायर्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस, दैट इज tier 1 and tier 2 आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा।
फर्दर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जब हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ने बताया कि मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड आर इन द बॉटम 20 डिस्ट्रिक्ट्स अमंग द कंट्री। तो अगेन स्किलिंग की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स को क्रिएट करना जहाँ पे की ट्रेनिंग मिल सकती है। एंड वी कैन ऑल्सो सी कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग है, एंड जो स्पेशल क्रॉपिंग है, जैसे कि असम के अंदर टी एंड डिफरेंट फ्रूट्स, ऑरेंजेस, जैसे मेघालय के अंदर पाइनएप्पल्स, त्रिपुरा के अंदर, तो उन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इको टूरिज्म का जो पूरा सेक्टर है उसको हम और बढ़ा सकते हैं इन द ईस्टर्न सेक्टर ऑल्सो। एंड हम बोल सकते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स के साथ हम जो एक्सपोर्ट हब्स के साथ कनेक्टिविटी है वो उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो टी इंडस्ट्री, हेल्थ केयर एंड वेलनेस इंडस्ट्री, रेन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री, एंड इसके साथ साथ आईटी सेक्टर, इन सेक्टर्स को भी, ये सेक्टर्स भी आने वाले टाइम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं रिगार्डिंग द रोल विच ईस्ट कैन प्ले। एंड इसके साथ साथ मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स जो कि काफी वास्ट रेंज में वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उनको ग्रो किया जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को उसके साथ जोड़ सकते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जोड़ सकते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम जो है वो वेल पोजिशनड है ऐसे डेवलपमेंट्स के लिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रेलवे की, जैसे असम से आंध्र प्रदेश तक के लिए रेलवे कनेक्टिविटी बनाई गई है। जैसे नेशनल वाटर हाईवे है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक के लिए चलता है, उनको हाईवे को नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ भी जोड़ा जा सकता है। इस तरह की कोई स्कीम चलाई जा सकती है। जब हम छत्तीसगढ़ या झारखंड की बात करते हैं तो 70 से 80% मिनरल्स की जो पूर्ति है वो उसी से होता है। तो उससे रिगार्डिंग वहां पर स्किल या फिर जो भी चीजें उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और नॉर्थ ईस्ट में जो वहाँ की लैंड है, जो सोइल है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो उस हिसाब से वहां पर खेती की जा सकती है, जिससे जैसे सिक्किम ने जैविक खेती को अपनाया, उस तरह की और चीजों को इनोवेट किया जा सकता है, ताकि वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है उसको पूरी तरह से यूज किया जा सके, बिना जो वहाँ के नेचर या फिर जो वहाँ के उसको सेंसिटिविटी को नुकसान पहुंचाए। Thank you, Deep, for adding. Next, Jupiter probe to stage fourth lunar Earth double flyby maneuver. So here this is regarding JUICE, or the Jupiter Icy Moons Explorer. So it was launched by the European Space Agency, created it. So mainly Jupiter based exploration mission है, and इसमें it is returning towards Earth on August 1920, और फिर braking effect use करके of its gravity it will take a shortcut to Venus and onwards to Jupiter. So three large ocean bearing moons of Jupiter, Callisto, Europa and Ganymede, in 2031 उसको ये असेस करेगा with the help of 3 further single gravity assists. तो यानी वापस आके दोबारा जा रहा है, तो ग्रेविटी असिस्ट को यूज कर रहा है। Further following up on NASA's 1990s Galileo mission to Jupiter, the European Space Agency led JUICE mission will orbit the solar system's largest planet, Jupiter. वो perform करेगा flybys of its 3 large icy moons, and finally will orbit Ganymede to study its potential to support life. Next, a ground plan for sustainable mass employment. तो again, as the title suggests, sustainable for long term. कैसे वो help कर सकती है, temporary नहीं है और ज़्यादा permanent है, and large mass को वो support करेगी, the kind of employment.
तो यहाँ पे there are some steps measured for the skilling needs. कि पहला कैसे, how can we begin from below through decentralized community action to identify skilling needs, कि कहाँ किन एरियाज में यहाँ पर नीड है। जो ग्राम सभा है और बस्ती समितिज है इन अर्बन एरियाज, वो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती हैं इन टेकिंग द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू पीपल। जैसे कि रजिस्टर करवाना ऑल दोज जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, किन सेक्टर्स में वो कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। प्लान क्रिएट करना फॉर एवरी यूथ इन पार्टनरशिप विद प्रोफेशनल्स, क्लस्टर लेवल पर ही। फिक्स टर्म के लिए अपॉइंटमेंट करना विद द लोकल गवर्नमेंट लेवल टू इंश्योर एविडेंस बेस्ड आउटकम्स, क्या उनका प्रोग्रेस है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, etc. इसमें we can again talk about the common service centers, CVCs के initiative की। इसमें एक ही जगह पर all the skilling etc. it can be provided. Second, converge initiatives for education, health, skills, nutrition, livelihoods, and employment at the local government level itself with the women's collectives. So again, community की accountability, untied funds, functionaries, ये सब enhance होएगा। एंड इवन वुमेन एम्पावरमेंट, एसएचजीज के रोल की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। फिर एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं तो इंट्रोड्यूस नीड बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स alongside undergraduate programs in every college, जिसमें कि साइड बाय साइड एक स्किल भी डेवलप होती रहेगी विद द पीपल दे कैन रिलाई ऑन, जिससे वो खुद का कोई स्टार्टअप कर सकते हैं या फिर इवन स्मॉल बिजनेस एट द माइक्रो लेवल इन द टर्शरी सेक्टर, इवन दैट कैन हैपन। फिर फोर्थ है स्टैंडर्डाइजिंग नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पे मेनली वी आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ जैसे सेक्टर्स में, न्यूट्रिशन जैसे सेक्टर में, जैसे कि क्रिएटिंग कम्युनिटी कार्डर्स फॉर केयर गिवर्स टू रन क्रेच यूनिवर्सली। जैसे कि 4 to 6 आवर आंगनवाड़ी सर्विस होती है, लेकिन जो नंबर ऑफ इन्फेंट्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं जितने की एक आंगनवाड़ी दे कैन मैनेज। तो कम्युनिटी कार्डर क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है। एंड फर्दर इन्हीं से ही हम जो जन केंद्रास हैं, न्यूट्रिशनल हब्स, उनको भी हम लिंक कर सकते हैं इनसे, सो दैट न्यूट्रिशन कैन बी प्रोवाइडेड एट अ वेरी अर्ली एज। फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का फॉर्मेशन, पॉलीटेक्निक्स एज हब्स इन स्किल डेवलपमेंट फॉर फीडर स्कूल्स, तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल गैप है इन एन एज ऑफ अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग, क्रिएटिंग दीज टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो ये काम कर सकते हैं एंड ऑल्सो वर्क एज अ हब फॉर फीडर स्कूल्स। इंटरप्राइज और स्टार्टअप को प्रमोट करना, अगेन दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। रेगुलर स्कूल करिकुलम होना, को शेयरिंग मॉडल। एंड इकोनॉमिक की अगर बात करते हैं, कैपिटल लोन्स एंड एंटरप्राइजेस, तो स्ट्रीमलाइनिंग सच लोन्स फॉर विमेन लेड एंटरप्राइजेस, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्राइजेस टू enable them to go to scale, startup village enterprise program SVEP। एंड फर्दर एफपीएस के साथ जब हम एमजी नरेगा के इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो देयर वाज दिस थिंग मेंशन के एमजी नरेगा कैन बी यूज्ड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एफपीएस एटसेट्रा, जिससे कि और ज्यादा इट कैन बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड वेलफेयर। 70% funds under the MG Narega in 2,500 water scarce blocks। Divya, you can add. इसके अलावा करियर काउंसलिंग की बात की जा सकती है कि स्कूल्स में ही किस तरह से काउंसिल किया जाए कि डॉक्टर इंजीनियरिंग या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा और भी स्किल्स या फिर और भी जो जॉब्स है उनको ज्वाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी इनिशिएटिव लिया गया था कि स्टार्टिंग में
जो स्टूडेंट या ग्रेजुएट पास आउट होंगे उन्हें स्किल किया जाएगा। उसके साथ लेवल 2 पर उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जोड़ा जाएगा, जहां पर प्राइवेट इंटरप्राइज को गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसके रिगार्डिंग। वो लोग कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप देंगे स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें स्किल किया जा सके और उस पर्टिकुलर जॉब के लिए या फिर जो सेक्टर है उसके साथ जोड़ा जा सके। उसके बाद लेवल 3 में उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर स्टार्टअप्स के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि वो आगे के इनिशिएटिव को किया जा सके। इस तरह से 1 से 2 साल का पूरा प्रोग्राम चलाया जाएगा, ताकि यूथ को स्किल किया जा सके और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्टार्टअप और सर्विस सेक्टर इससे रिगार्डिंग जो स्किल्स हो सके उनको सिखाया जा सके, और इसके साथ साथ उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि फाइनेंशियली उनकी हेल्प हो सके। तो उन चीजों को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि 107 करोड़ यूथ है जिनका यूज किया जा सकता है कार्यबल में, जिसमें से 52 करोड़ के अप्रोक्स वुमेन है और 55 करोड़ के अप्रोक्स मैन है। तो वुमेन को भी इक्वल भागीदारी दी जा सकती है। जब हम देखते हैं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में है, तो जीडीपी में भी उनका योगदान बढ़ेगा। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो पढ़े लिखे और निरक्षर लोग हैं उनके बीच में अत्यधिक गैप देखने के लिए मिलता है, कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो जॉब नहीं कर पाते, कि उनके लेवल की होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। तो उस चीज को हटाया जा सकता है सिग्मा को, ताकि एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा सके कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और उसे ज्वाइन भी किया जा सके। जब हम परसेंटेज देखते हैं तो निरक्षर के बीच में 0.2% देखने के लिए मिलता है, वहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में 2.2% देखने के लिए मिलता है, जो कि एक समाज द्वारा बनाई गई प्रतिक्रियाओं के कारण भी देखने के लिए मिलता है। तो इन चीजों को भी चेंज किया जा सकता है। करूँ ना, आप ऐड कर सकते हैं। We can move forward, Divya.